Hello students, how are you? I hope you all are very fine. Children, this is the exercise of chapter 6 Citizenship of your political science book. Children, in the previous video I had given you the solution of question 1, 2 and 3, and today I will give you the solution of question 4, 5 and 6. करें क्वेश्चन नंबर 4 की. What are some of the problems faced by refugees? In what ways could be concept of global citizenship benefit them? तो आंसर है any answer supported with argument or explanation would solve the purpose. It is strongly recommended that you prepare the solution on your answer. However, some sample pointers have been provided for your reference. The following are some of the problems faced by refugees. Refugees are not treated well by local residents of the place. They are considered as a burden on the local economy. The local residents feel that refugees are snatching their job opportunities in that area, and the refugees are held responsible for spreading diseases, crime and polluting the area as they mostly live in slums and tents. They are constrained to do useful and necessary work but at low wages. Refugees face the problem of shelter, food and lack of employment. Refugees are exempted from the rights that are given by the state to its people, like enjoying the right of minimum standard of living and security. Thus, they are often exploited by the police and other local residents on grounds of the rights that they lack as a member of that state. Global citizenship would be beneficial to refugees as it will be easier to deal with problems that extend across national boundaries and require cooperation of other states. It would also help refugees, the stateless people, by providing them basic rights and solutions to their problems so that they can lead a normal life. चिल्ड्रन, यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है कि बहुत सारी रिफ्यूज़ीज़ मतलब कि जो शरणार्थी होते हैं उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं. ग्लोबल सिटीज़न के कॉन्सेप्ट में देखें तो किस तरीक़ों से उन्हें बेनिफिट पहुंचाया जा सकता है और किस तरह की प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं, ये आपको बताना है. तो यहाँ पर आंसर दिया है कि रिफ्यूज़ीज़ जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं. जैसे कि सबसे पहला तो उन्हें लोकल रेसिडेंट्स में उन्हें अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया जाता है. फिर लोकल इकनॉमी के ऊपर बर्डन पड़ता है, ऐसे लोगों की सोच होती है. इसके बाद जो लोकल रेसिडेंट्स हैं उन्हें ये लगता है कि ये लोग जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो उनसे छीन लेंगे, तो उनके साथ इल ट्रीट करते हैं. इसके साथ साथ लोगों को ये लगता है, जो सिटीजन्स होते हैं उन्हें ये लगता है कि ये लोग डिसीज़ को भी स्प्रेड कर देंगे, या फिर क्राइम बढ़ जाएगा, या फिर उस एरिया का पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादातर स्लम्स और टेंट्स बना करके रहते हैं. तो ऐसी बहुत सारी ये जो हमने मेंशन किए हैं, आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जो रीज़न है वो ये फेस करते हैं. ग्लोबल सिटीजनशिप के रूप में यदि देखा जाए तो रिफ्यूज़ीज़ जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स को डील करते हैं, और नेशनल बाउंड्रीज़ और कोऑपरेशन के द्वारा इन रिफ्यूज़ीज़ को कुछ बेनिफिट पहुंचाया जा सकता है कोऑपरेट करके. और रिफ्यूज़ीज़ जो है उनको यह भी कुछ बेसिक राइट्स प्रोवाइड करवाए जा सकते हैं, या फिर उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके नॉर्मल लाइफ जो है उनको प्रदान की जा सकती है. इसके बाद क्वेश्चन 5, माइग्रेशन ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स within the country is often resisted by the local inhabitants. What are some of the contributions that the migrants could make to the local economy? Answer: migrants contribute greatly towards the economy of the state where they are working. They perform useful work at lower wages and make up a large proportion of the service sector. The goods and services provided by them are counted in the GDP. Migrants bring new skills and techniques that can be adopted to suit local conditions. Migrants workers
also pay taxes and thus contribute to economic growth of their host region. तो चिल्ड्रन यहाँ पर हमें मेंशन करना है कि जो माइग्रेंट्स होते हैं, आप जानते ही हैं माइग्रेंट्स जो होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के रहने वाले जो लोग होते हैं वही माइग्रेंट्स कहलाते हैं। तो दूसरे स्थान पर जाकर के जो बस जाते हैं, तो यहाँ पर आपको बताना है कि लोकल इकोनॉमी में माइग्रेंट्स जो है वो किस तरह से अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो आंसर आप देख सकते हैं कि जो माइग्रेंट्स हैं सबसे पहले तो वो स्टेट के लिए काम करते हैं और इकोनॉमी को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इसके साथ साथ वो लो वेजेस पर काम करते हैं और जो सर्विस सेक्टर हैं उन्हें हाई प्रपोर्शन में अपनी सर्विसेज देते हैं, जबकि जो उनका वेजेस है वो बहुत कम लेते हैं। जीडीपी को बढ़ाने में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। माइग्रेंट्स जो है वो नई नई स्किल्स को ला सकते हैं और जो कि लोकल कंडीशन को काफ़ी सूट करती हों। माइग्रेंट्स वर्कर जो है वो टैक्स भी पे करते हैं और साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा अपना योगदान देते हैं। चिल्ड्रन, यहाँ तक आपको अपनी कॉपी कंप्लीट कर लेना है, क्वेश्चन आंसर्स को प्रॉपरली लिख लेना है और लर्न भी कर लेना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप इज़ अ प्रोजेक्ट rather than an accomplished fact, even in countries like India, which great equal citizenship. Discuss some of the issues regarding citizenship being raised in India today. Answer: democratic citizenship is a project rather than an accomplished fact, even in countries like India, as in democratic countries people are still far behind in fully enjoying the rights associated with democratic citizenship. In the context of India, equality of rights is ensured for all citizens by the Constitution, but does not always translate on the ground. Socio-economic inequality is a major factor preventing the access of all citizens to basic rights. Citizens have the right to move and work freely anywhere within the territory. They have the right to enjoy basic facilities that are needed to survive and lead a healthy life, but migrants are exempted from these rights as Indian citizens at some places. Besides migrants, other citizens are not able to enjoy the rights fully. Girl children are not able to enjoy the basic right of education. Many poor children are forcefully engaged in child labor, though these children have got certain fundamental rights in democratic India, but they are not able to enjoy it. The issue of dual citizenship for people who reside outside the country is also a matter of debate and shows the dynamic nature of the concept of citizenship. Therefore, it can be said that democratic citizenship is a project that has still to meet its goal rather than having accomplished it. क्वेश्चन में बोला गया है कि डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप है एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे समझा जाता है कि वह एक आइडियल है मतलब कि सभी को इक्वल राइट्स प्रोवाइड करता है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज सभी को प्रोवाइड होती हैं। तो हमें हमारे भारत के संदर्भ में बताना है कि किस प्रकार से यह काम करता है या कहीं इसमें भी कोई कमियां रह जाती हैं। तो डेमोक्रेटिक सिटीज़न जो है वो हम इसे मान सकते हैं कि एकम्प्लिश्ड फैक्ट है, लेकिन उसके बाद भी इसमें कुछ कमियां रह जाती हैं। जैसे कि हम अपने भारत के संदर्भ में देखें तो इक्वालिटी जो है वो सभी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर सिटीज़न को राइट प्रोवाइड करता है। उसके बाद यदि ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो इसमें कमियां दिखाई देती हैं, सभी को इक्वालिटी जो है वो इक्वालिटी का राइट जो है वो प्राप्त नहीं हो पाता है। सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वह भी बेसिक राइट के अंतर में आता है, लेकिन लोगों के बीच में इसमें भी अंतर देखा जाता है। सिटीजन्स जो हैं बहुत जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ की जो सुविधा है वह प्रोवाइड करने का अधिकार देता है और एंजॉय करने का अधिकार देता है, हेल्दी लाइफ का अधिकार देता है। उसके बाद भी कुछ माइग्रेंट्स जो होते हैं वो इन अधिकारों को यूज़ नहीं कर पाते हैं और कुछ कमियों के साथ वो जीवन चलते हैं। यहाँ भी इनइक्वालिटी दिखाई देती है। यदि हम माइग्रेंट्स के अलावा भी बात करें तो गर्ल्स की बात हम कर सकते हैं कि जो गर्ल्स हैं वो भी अपने राइट्स जैसे एजुकेशन का राइट है उसे यूज़ नहीं कर पा रही हैं, उसे एंजॉय नहीं कर पा रही हैं। गरीब बच्चे जो होते हैं
वो भी ज़बरदस्ती चाइल्ड लेबर में लगा दिए जाते हैं। यह भी उनका फंडामेंटल राइट का यहाँ भी हनन हो रहा है। और यदि ड्यूल सिटीजनशिप की हमारी बात हम करें तो जैसे हमारा देश है और जो डायनेमिक नेचर, यदि हम सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट में डायनेमिक नेचर की बात करें तो जो डिबेट और यदि देखा जाए तो बाकी सारी चीज़ें जो हैं ये मैटर करता है कि सिटीजनशिप जो है वो अधिकार प्रदान करती है। नागरिकता के साथ साथ बहुत सारे दायित्व और अधिकार भी होते हैं, लेकिन इसके बाद भी उनमें कुछ कमियां रह जाती हैं। तो यदि हम कहें डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप जो है वो एक परफेक्ट कंप्लीट एक प्रोजेक्ट है, तो इसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती है कि जो डेमोक्रेसी है वहाँ भी कुछ कमियां हैं और ग्राउंड लेवल पर इन कमियों को दूर करने का प्रयास गवर्नमेंट को या जो सिटीजन्स हैं उनको करना चाहिए। चिल्ड्रन, यहाँ आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे।